Assalamu alaikum. Hi guys. Hope you can listen me. Yes, sir. Yes, sir. So today we are going to discuss the remaining topic of the mixed design. In our last lecture, we discussed about the different kind of parameters to be included in design. For example, in first step, we decide what should be the strength of the concrete, and another step, we decide from the strength that what should be the water to cementitious ratio, and then the aggregate content, air content, and then we can decide the slump amount, and from aggregates, the size of the aggregate and the water content, we can calculate the water content. Knowing the water cement ratio, we can calculate the cement amount, and then the aggregates. Among aggregates, there are two type of aggregates. One is the known as the coarse aggregate, and another one is known as the fine aggregate. तो कोर्स एग्रीगेट को हम कैसे फाइंड करते हैं? कोर्स एग्रीगेट को फाइंड करते हैं उसकी जो है the ratio of the coarse aggregate to the whole volume of the cement. If the volume of cement is considered as a 1 cubic meter, तो उसको फाइंड करने के लिए हम जो है कोर्स एग्रीगेट की रेशियो को फाइंड करने के लिए then what we do, basically there's a graph between fineness modulus of there's a table of the fineness modulus of sand and the maximum size of the coarse aggregate. From that we can calculate the amount of coarse aggregate in unit volume of concrete. ठीक है, तो ये सारा चीजें जो ना कैलकुलेट होती हैं. So in our last lecture we discussed that how water cement ratio varies with the strength of the concrete. This means the design strength, that the strength at 28 days. It is related with inversely proportional for both air intent concrete and non-air intent concrete. For the same water cement ratio, the strength for air intent concrete is a bit lower than the strength of non-air intent concrete. Okay. Similarly, we discussed that how to decide the aggregate size, what should be the maximum aggregate size. There are 5 kind of parameters to be deciding factors for the maximum size of the coarse aggregate. Among those parameters is the clear cover of the reinforcement, and the distance between the reinforcing bar, then the depth of the slab, then the narrowest dimension of the formwork. ठीक है ना? इसका जो है and the size of the pump for pumping concrete, तो उसका जो है डाया जो है वो भी डिसाइड करता है कि क्या होना चाहिए. So then among these 5 factors, the lowest one will be your maximum size of the coarse aggregate. ठीक है? And how coarse aggregate behaves when sand get filled inside the interstices of the coarse aggregate. If there is no sand, that you can estimate the amount of the volume remain in the voids of the coarse aggregate. If we fill the coarse aggregate with the sand, then the net volume of water to filling the pores basically is the corresponding volume of the paste. So if by increasing the coarse aggregate size, आप देखेंगे कि volume drastically reduce. जो वॉल्यूम जो है वाटर ने फिल करना है वो क्या होता है, ड्रास्टिकली कम हो जाता है. क्यों कम होगा भाई? हाँ, सीमेंट बेस सर कम हो जाता है जी, पेस्ट कम रिक्वायर्ड होता है सर. एग्जैक्टली.
कम रिक्वायर्ड होगा क्योंकि स्पेसेस कम रिक्वायर्ड होंगी ना। इफ इट इज फुली कंपैक्टेड, इफ इट इज फुली कंपैक्टेड एंड थॉरली कंपैक्टेड, ऐसा नहीं है ऊपर से कंपैक्टेड है और नीचे से नहीं, ठीक है ना। Similarly, here is the ratio of the bulk volume of the coarse aggregate to the unit volume, the volume of the concrete. तो ये जो है रेशियो कैसे कैलकुलेट होती है, जस्ट इन अवर लास्ट लेक्चर वी डिस्कस इन डिटेल दैट द फाइनेंस मॉड्यूलस और आपके पास मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट, ये दो वैल्यूज आपके पास पता हो, देन यू कैन कैलकुलेट, यहाँ से आप जो एस्टिमेट कर सकते हैं corresponding वैल्यू जो है ना, यू कैन ड्राइव, ऐसे ही है ना। सिमिलरली अगर आपके पास टेबल नहीं है तो फ्रॉम दैट ग्राफ इवन यू आर एबल टू ड्रॉ इट, ठीक है ना, ठीक है। सिमिलरली देखो ना, ये मैक्सिमम साइज इंचेस गिवन है, इस साइड पे कौन सा गिवन है, इन एमएम, इट इज गिवन इन एमएम, मिलीमीटर, ठीक है ना, इन यूनिट मिलीमीटर मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट। Here it is written nominal maximum size of the course aggregate, ठीक है ना। maximum size तो 100% के लिए होगा ना, nominal maximum size almost 90% के लिए होता है, ठीक है। air content, last time we discussed that air content को जो ना mainly 2% होते हैं, सही है ना, और नॉर्मल कंक्रीट में अब देखो ना here 2% से कम होगा ना, तो कम होगा, लेकिन if it is the aggregate size is more than 40 mm, more than 40 mm, 40 mm mean 1.5 inch, इससे ऊपर हो तो then air content could fall below 1%, ठीक है ना। तो ये साइज ऑफ द एग्रीगेट पे भी डिपेंडेंट होता है, क्यों डिपेंडेंट होता है भाई, लास्ट टाइम मैंने पूछा भी था, बिकॉज ऑफ द पेस्ट, पेस्ट कम रिक्वायर्ड होगा और एयर कंटेंट तो पेस्ट में होते हैं, ठीक है। अच्छा स्लम्प जो है इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो स्लम्प टेस्ट किस लिए करते हैं भाई, वर्केबिलिटी के लिए सर, कंसिस्टेंसी स्लम्प टेस्ट के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए। okay, okay. Slump test is used to measure the concrete consistency for giving proportion of a cement and aggregate without a mixture. The higher slump, the wetter mix. The wetter, the mix. Slump is indicative of what? Workability when assessing similar mix. ठीक है ना, आपके पास जो है स्लम्प जो है ना इजी मेजरमेंट है उसके लिए, कंसिस्टेंसी के लिए, फिर एंड देन the correspondence value for the workability is also assessed by measuring slump test, ठीक है ना। कंसिस्टेंसी मेजर होती है ये जो ना, और उस कंसिस्टेंसी के थ्रू हम वर्कबिलिटी को असेस करते हैं, ठीक है ना। तो आप इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि वी आर मेजरिंग द वर्कबिलिटी, ठीक है ना। इट इज इजी टू मेजर, तो इसलिए जो ना मेनली ये टेस्ट यूज होता है, ठीक है ना। एंड देयर आर सो मेनी अदर टेस्ट। अच्छा उसके लिए क्या करेंगे कि स्लम्प जो है जब कंक्रीट का मिक्स हम डिजाइन कर रहे होते हैं उस वक्त स्लम्प पहले डिसाइड होता है या बाद में डिसाइड होता है, who will tell me? सर स्लम्प को पहले से डिसाइड हो, वर्केबिलिटी चाहिए। क्यों पहले डिसाइड होता है, कौन सी सर मैक्स डिजाइन जो सर कौन पंप सी करना तीन होता है तो चीजें उसके हैं, लिए कौन सी तीन चीजें हैं जो डिजाइन में जाने से पहले हम डिसाइड कर लेते हैं? जी, what are major three things that are pre-decided before going into design? Anybody? One of them is slump. Okay. बच्चों नो आइडिया। यस सर नो आइडिया, अच्छा अच्छा कोई मसला नहीं है।
अच्छा पहला जो है ना, हम स्लम्प, आपने पूछा नहीं, स्लम्प को कंप्लीट डिसाइड कर लेते हैं। ये सर डिजायर्ड वर्केबिलिटी एग्जैक्टली हमें जो है ना, जब हम, आप बंद करेंगे अपना माइक तो मैं बोलूं। एग्जैक्टली बेसिकली आपके पास जो है, जो जहां कंक्रीटिंग करनी है, आपको डिजायर स्ट्रेंथ और डिजायर वोकेबिलिटी पहले से आपको पता होनी चाहिए कि कितनी आपके पास डिजायर स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है और डिजायर्ड वोकेबिलिटी कितनी है। और तीसरी थर्ड चीज क्या है, आपके पास जो है मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट कितना अवेलेबल है और आपको रिक्वायर्ड कितना है। तो ये जो है ना, ये तीन चीजें जो है ना आपके पास बिफोर गोइंग इनटू डिजाइन कैलकुलेशन आपके पास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए आपके पास? यू नो द वोकेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। वोकेबिलिटी से मुराद ये है कि व्हाट टाइप ऑफ कंक्रीट यू आर गोइंग टू कॉस्ट, ठीक है ना, एंड व्हाट काइंड ऑफ मशीनरी यू आर यूजिंग इन फॉर कंपैक्शन एंड फॉर मिक्सिंग, सही है ना। उससे भी जो ना आपको वोकेबिलिटी डिसाइड हो सकती है, सही है। और फॉर एग्जांपल इफ यू आर कॉस्टिंग ए डीप बीम, उसके लिए आपको हाई वर्केबल मिक्स रिक्वायर्ड है। इफ यू आर कॉस्टिंग ए कंक्रीट फॉर अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स जिसमें कंपैक्शन पॉसिबल नहीं है या बहुत मुश्किल से कंपैक्शन होगी, तो उसके लिए आप हाई वर्केबल कंक्रीट डिजाइन करते हैं, क्योंकि जो ना सेल्फ कंपैक्ट हो या विद स्लाइड वाइब्रेशन की कंपैक्शन पॉसिबल हो जाए। समझ आ रही है ना? तो आप जो है ना, फॉर एग्जांपल एनीथिंग दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी रोलर कंपैक्टेड, तो वो जो है ना उसका स्लम्प रिक्वायर्ड नहीं होता, क्योंकि रोलर ने उसका कंपैक्ट करना है। एनीथिंग दैट इज कंपैक्टेड, स्लैब में अगर कोई चीज रिक्वायर्ड होती है तो उसका भी क्या होता है, आपको जो ना इतना स्लम्प, जो ना हाई स्लम्प रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है ना। तो दिस इज प्री डिसाइडेड स्ट्रेंथ। क्यों प्री डिसाइडेड है? एनीबॉडी? सर फिर वो डिजाइन स्ट्रेंथ के मुताबिक वहाँ बोलते रहते हैं। एग्जैक्टली आपके पास जो है, जो डिजाइन रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ होगी ना, उसके लिए आप चीज डिसाइड करोगे ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको जो ना एग्जांपल कोट करता हूं कि आपने क्या चीज, कोई मेडिसिन लिखनी है आपने टेम्परेचर के लिए, टू लोअर द टेम्परेचर। तो इफ यू हैड टेम्परेचर ऑफ 103 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सॉरी फ़ारेनहाइट, तो उसके लिए उसके लिए जो ना आपने मेडिसिन लिखेंगे तो जाहिर है आपको वो मेडिसिन तो नहीं होगी ना जो उसके लिए होती है 99 या 100 टेम्परेचर के लिए। तो अकॉर्डिंगली आपने जिस जिस तरह आपको रिक्वायर्ड है जिस लेवल की स्ट्रेंथ, तो उस लेवल के लिए आपने डिजाइन करना है। उस लेवल की वाटर सीमेंट रेशियो आपको रिक्वायर्ड है, उस लेवल के लिए आपको सीमेंट अमाउंट रिक्वायर्ड है, उस लेवल के लिए आपको जो है ना बाकी चीजें जो है ना एडजस्ट होंगी, ठीक है। तो when used for the different batches is same mix design, तो change in slump जो है हो सकता है and will indicate the consistency, सही है ना, and characteristics of the materials, mix proportion, water content, mixing and time of the test or the testing itself। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये इफेक्ट करते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका जो ना स्लम्प जो ना डिफरेंट बेचेस के लिए अगर सेम मिक्स है तो वो एक ही हो, ठीक है ना। इट्स इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम ऑफ द टेस्ट एज वेल, क्योंकि आप अगर डे टाइम पे करेंगे तो मॉइस्चर लॉस होगी ना एयर में, यस सर। होगी ना। तो Yes, sir. सिमिलरली आपका टेस्ट मेथड पे भी डिपेंड करता है। अगर आप टेस्ट करेंगे तो मुमकिन है रिजल्ट और हो, अगर मैं टेस्ट करूंगा तो मुमकिन है रिजल्ट और हो, थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकती है, ठीक है ना, टेस्टिंग पे भी। और अगर स्टैंडर्ड्स अगर आप फॉलो करेंगे तो ऑलमोस्ट आपको पास 90% ऑफ द केस आपके पास सेम जो ना वो रिजल्ट होगा, ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट होगा, ठीक है ना, विद स्लाइट 10% एरर, ठीक है। अच्छा, here is the slump requirement if there is no slump। आपके पास जो है slump जो है ना क्या होता है, कोई वैल्यू नहीं होती। अब slump को मेजर आपने किया है वैसे लैब में? यस सर किया है। Yes, यस sir. सर किया था, यस सर। ऐसे किए ना, इस तरह किए ना, ये जो सामने जो ना आपके पास जो ना टैप से Yes, हम sir. देख, यस सर, यस यस सर।
कौन सी वैल्यू होगी? टैप के ऊपर वाली वैल्यू होगी, नीचे वाली वैल्यू होगी? रॉड के ऊपर या नीचे? रॉड के नीचे नीचे वाली। स्लम्प तक, हाइट, स्लम्प की हाइट तक। एग्जैक्टली सर वो स्लम्प होगा। ठीक है। For the low slump can be categorized. In description of slump, you can see no slump, very slow slump, low slump, medium slump, high slump, very high slump. A very high slump we used to go for the deep structures, deep beams, deep columns. उसमें जो ना हम देते हैं. High slump जो है आपको जो है ना deep beam columns में भी जो ना this is high slump is mainly required, but with the क्या आपके पास हो वाइब्रेटर, पोक वाइब्रेटर हो. And medium slumps you can use anywhere in the concreting. Low slump is only meant for the slab में low slump आप जो ना दे सकते हैं. And very slow slump जो है आप वहां पे देंगे कि जहां पे you need quick setting. ठीक है ना? आपको कंक्रीट जो है ना within 1 hour या within 2-3 hours वो इन यूज हो जाए. ठीक है ना? तो जैसे रोड रिपेयर है या इस किस्म में, या सम टाइम आपके पास जो है रोलर कंपैक्टेड जो है ना आपकी कंपैक्शन रिक्वायर्ड होती है, तो वहां पे लो स्लम्प आप देते हैं. ठीक है? तो ये वर्केबिलिटी जब बहुत ज्यादा आई हो तो ये पिछले वाला टेस्ट कर सकते हैं सर? ये तो फिर सारा फैल जाएगा सर. बिल्कुल फैल जाएगा. ऐसे होता है सम टाइम ना, आप स्लम करते हैं ना, तो कोलैप्स स्लम्प इज नोन एज कि आप जब उसको जो है ना कोन को उठाएंगे तो देन द स्लम्प ऑफ द कोन विल डायरेक्टली कोलैप्स हो जाएगी, जो फ्लो कर जाएगी. समझ आ रही है? सही है. तो इसमें इसका मतलब है कि कोलैप्स स्लम्प है. और कोलैप्स स्लम्प मीन के इसमें आइदर यू हैव वेरी हाई वाटर कंटेंट या इसमें सैंड की अमाउंट बड़ी कम है. ठीक है ना? सैंड की अमाउंट जितनी ज्यादा होगी तो स्लम्प जो है ना उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगी ना उसको, सैंड पार्टिकल्स को फ्रैक्शंस के लिए. ठीक है ना? तो वो क्या होंगे, रेजिस्ट करके तो कोन शेप में जो ना मतलब अब उसमें हेल्ड हो जाएंगे. तो अगर सैंड की अमाउंट कम होगी तो आप देखेंगे कि कोर्स एग्रीगेट जो है उनमें तो बिकॉज ऑफ देयर लार्जर साइज तो ओवरऑल सरफेस एरिया उनका कम हो जाता है ना, फ्रिक्शन उसमें तो इतनी डेवलप नहीं होती. तो पेस जो है उनकी फ्रिक्शन को मजीद मिनिमाइज कर लेता है और वो कोलैप्स हो जाते हैं. ठीक है ना? तो इसलिए हम कहते हैं कि सम टाइम दे टाइप ऑफ कंक्रीट, ये जो आपके पास स्लम्प होता है ना कोलैप्स स्लम्प, तो वो टाइप ऑफ कंक्रीट इज ससेप्टेबल फॉर व्हाट, फॉर सेग्रीगेशन पॉसिबल होती है. अगर कोई स्लम्प की कोई वैल्यू आ रही हो ना तो कंक्रीट में सेग्रीगेशन के चांसेस कम से कम होते हैं. ठीक है ना? अगर स्लम्प कोलैप्स्ड है देन यू मेक श्योर कि इसमें अब सेग्रीगेशन ना हो. क्योंकि पोरिंग में भी सेग्रीगेशन हो सकेगी. सेग्रीगेशन कैन बी आप जो ना कैरेज में भी सेग्रीगेशन हो सकेगी, कंपैक्शन के दौरान भी सेग्रीगेशन हो सकेगी. तो उस वक्त फिर आपकी इंजीनियरिंग जो है ना फिर काम आएगी, हाउ टू अवॉइड दैट सेग्रीगेशन. तो आपने फिर मेजर लेनी है. ठीक है ना? इफ देयर इज ए कोलैप्स स्लम्प. बाकी स्लम्प्स पे भी हो सकता है, लेकिन कोलैप्स स्लम्प पे मैंने कहा there is a high chance of the susceptibility or the occurrence of the segregation. ठीक है ना? अच्छा, तो कंक्रीट का जब मिक्स डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले क्या चीज हम फाइंड करते हैं भाई? सर वर्केबिलिटी. वर्केबिलिटी सबसे पहले ना. लिसन, सबसे पहले जो आपके पास ज़हन में चीज आएगी वो आएगी कंक्रीट की स्ट्रेंथ कितनी रिक्वायर्ड है आपको. ठीक है ना? क्या चीज आपके माइंड में आनी चाहिए? कंक्रीट की स्ट्रेंथ कितनी रिक्वायर्ड है. उस स्ट्रेंथ के लिए आप फिर कैलकुलेट करते हैं कि करस्पॉन्डिंग वाटर सीमेंट रेशियो कितनी हो और हमें जो ना ये स्ट्रेंथ मिले. स्ट्रेंथ इज मेनली रिलेटेड विद द वाटर सीमेंट रेशियो. उसको जो है ना हम वाटर सीमेंट रेशियो से करस्पॉन्ड करते हैं. किससे करेंगे? वाटर टू सीमेंट रेशियो से. ये यहाँ पे है ना वाटर टू सीमेंट रेशियो. फॉर एग्जांपल आपको स्ट्रेंथ कितनी रिक्वायर्ड है? 40 मेगापास्कल. उसके लिए वाटर टू सीमेंट रेशियो क्या होगी फॉर नॉन एडेड कंक्रीट? 0.8.
4:2, ठीक है ना। वंस वी हैव दैट वाटर सीमेंट रेशियो, फिर हम देखेंगे कि इसकी जो है ना कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए, इसको जो ना इसकी वर्केबिलिटी क्या रिक्वायर्ड हो। तो फिर वर्केबिलिटी के लिए असेस हम करते हैं थ्रू स्लम्प टेस्ट। तो स्लम्प वैल्यू हम देखते हैं इसकी स्लम्प वैल्यू क्या हो। स्लम्प वैल्यू के लिए फिर हम देखते हैं कि मैक्सिमम साइज ऑफ पोर्स एग्रीगेट जो गिवन है, जो हमें रिक्वायर्ड है, उस पे जो है ना मैक्सिमम स्लम्प कितना आपके पास आएगा, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल आपके पास 30 जो है ना क्या है, 30 mm इसका साइज है फॉर नॉन एयर रिटर्न कंक्रीट, और स्लम्प क्या है 75 to 100, 75 to 100। तो इफ स्लम्प इज दिस वन, सॉरी फिर दोबारा जो आ जाएगी, 30 mm is the size of your coarse aggregate, maximum size of the coarse aggregate, and 75 to 100 mm is the slump. तो आपके पास what should be the amount of the water content per unit per cubic meter of the concrete? कितनी होगी बच्चों? 182, 180, 185 something आ रही है। Exactly, ठीक है ना। ऐसे जो ना correspondence वैल्यू ले लेंगे। अगर if it is in pounds per cubic yard, तो आप इस साइड पे ले लें, ठीक है ना, ग्राफ के। सही है। इफ द मैक्सिमम कोर्स एग्रीगेट साइज इन अवेलेबल इन इंचेस, तो आप ऊपर वाली साइड से ले लें, ठीक है, समझ आ रही है ना। yes sir, यस सर, यस सर। तो आपके पास जो है हमेशा जो वाटर रिक्वायरमेंट जो होगी, तो उसके लिए कौन से दो पैरामीटर आपको रिक्वायर्ड हैं? slump और sir aggregate स्लम्प और size, सर एग्रीगेट साइज, मैक्सिमम एग्रीगेट मैक्सिमम साइज। एग्रीगेट साइज, ठीक है ना। इज इफ यू हैव यू नो द मैक्सिमम एग्रीगेट साइज इन दिस table, you can easily estimate the amount of the water requirement in the concrete for cubic meter of concrete, ठीक है ना, सिंपल इज दैट। आपके पास वाटर तो आपने फाइंड कर लिया। सिमिलरली आपके पास मैं यहाँ पे एक चीज बता चलूं, आपके पास जो है ना, आप देखें यहाँ पे, लिसन, ये एक पाई है, इसमें जो ना जो एग्रीगेट्स भी हैं, सैंड भी है, वाटर भी है, सीमेंट कंटेंट भी है, इसमें एयर कंटेंट भी है, एड मिक्सचर्स भी है, सप्लीमेंट्री सिमेंटिशियस मटेरियल्स भी हैं, ठीक है ना, ग्रीन में गिवन है ना। तो ये जो कंक्रीट है, तो सारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं कंक्रीट में। इफ वी इंक्रीज वन ऑफ द वी चेंज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन दैट पाई, तो ये इफेक्ट करेगा ना बाकी इंग्रेडिएंट्स को, yes sir, Yes sir. करेगा Yes, ना। sir. इफ वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द वाटर टू सीमेंट रेशियो तो सेम है, वाटर सीमेंट रेशियो, तो सीमेंट अमाउंट भी रेज हो जाएगी ना। अब देखो ना, फॉर सेम वाटर सीमेंट रेशियो, इफ वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर, सीमेंट अमाउंट भी correspondingly ज्यादा हो जाएगी ना, Yes, sir. ठीक है। अच्छा, sir, सीमेंट yes, अमाउंट sir. ज्यादा होगी तो क्या होगा, पेस ज्यादा हो जाएगा, पेस ज्यादा हो जाएगा तो उसमें एयर कंटेंट भी ज्यादा हो जाएंगे, ऐसा ही है। Yes, yes sir. sir, यस अच्छा, सर, यस। फिर किस पे अफेक्ट करेगा, सैंड को और कोर्स एग्रीगेट को, उसकी अमाउंट कम होती रहेगी ना। yes sir, Yes sir. तो फॉर मैं एग्जांपल में दे रहा हूँ, एडिशन ऑफ 2 kg ऑफ वाटर पर क्यूबिक मीटर will increase the slump by approximately 10 mm। आप जो है 10 mm स्लम्प रेज हो जाता है, 10 mm स्लम्प क्या होगा, रेज होगा, एंड इट विल क्या होगा, सर आपकी आवाज इको कर रही है सर। इको कर रही है, अच्छा अच्छा, जस्ट अ मोमेंट। ठीक हो गई है सर। सही हो गया क्लियर सर। क्लियर क्लियर। सर ठीक हो गई अब। इको इसलिए कर रही है, मुमकिन है आप जो ना आपने माइक अपना ऑन किया हुआ है ना। अच्छा, तो for same for example, the addition of 2 kg of water per cubic meter of concrete will increase the slump by approximately 10 mm, सही है ना। It will also increase air content भी increase होंगे, paste volume increase होगा, and decrease the amount of the aggregate and lowering the density of the concrete की density क्यों lower होगी भाई,
because the density of the paste is always lower than the density of aggregates and sand. क्यों डिक्रीज होती है? सही ना, हमेशा कम होगी ना, पेस्ट में एयर भी होती है और वाटर भी होता है, ऐसे ही है ना, उसकी डेंसिटी कम होगी. For same slump, decrease in air content by 1% will increase water demand by 3 kg per cubic meter of a concrete. इस बात पे समझे आप ये हर में क्या मैंने कहा? एयर कंटेंट रिड्यूस करने से भी जो वाटर डिमांड है वो बढ़ जाएगी. क्यों बढ़ेगी भाई? इस पर क्योंकि पेस्ट ज्यादा चाहिए होगी, सीमेंट पेस्ट ज्यादा हो जाएगा तो पेस्ट ज्यादा जरूरी होगी हमारे पास. पेस्ट ज्यादा कैसे जरूरी होगा? फॉर सेम स्लम्प एयर कंटेंट जो है ना कम हो गया ना. देखो ना, एयर कंटेंट अगर हम जो है रेज करना चाहें तो उसके लिए आपको वाटर रिक्वायरमेंट इसलिए कम होती है कि एयर कंटेंट फैसिलिटेट और कंट्रीब्यूट टू सम एक्सटेंट टू द वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट. फॉर द सेम वर्केबिलिटी, इफ वी डिक्रीज एयर कंटेंट तो वाटर कंटेंट तो इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि वर्केबिलिटी ऑफ एयर कंटेंट से नहीं मिल रही. yes sir, Yes, exactly. yes, sir. You got my point? यस सर. There are some, these are technicalities. तो साथ साथ हम डिस्कस करते हैं. अच्छा, सिमेंटिंग अमाउंट जो है कैसे फाइंड करेंगे? अच्छा, सीमेंट अमाउंट के लिए जो ना मैंने यहाँ पे इसको बात को हाईलाइट किया कि आप देखो ना, इफ वाटर सीमेंट रेशियो इज फॉर एग्जांपल वाटर सीमेंट रेशियो इज 0.3. क्या है? 0.3. तो वाटर कंटेंट तो आपने देखा कि वो तो सेम है, आपने जो ना मतलब 180 kg पर क्यूबिक मीटर, फॉर सेम स्ट्रेंथ. ठीक है ना? वाटर कंटेंट तो उस पे डिपेंड करते हैं ना, स्लम्प पे, और किस पे डिपेंड करेंगे? Maximum aggregate. मैक्सिमम एग्रीगेट पे. वो तो इतने हैं, तो सीमेंट अमाउंट आपके पास कितनी हो जाएगी? ये 180 into 0.3 चाहिए. 180 डिवाइडेड बाय दिस वन. तो ये तो ऑलमोस्ट आपके पास जो है ना तकरीबन 5 या 6 kg. कहना चाह रहा है कि it is important even though the strength requirement may be met at lower water ratio, lower cementing material, excessively large amount of the cementing material should be avoided to maintain economy in the mix and to advise a adverse effect affecting the workability and other properties. ठीक है? तो आपके पास जो है ना कंक्रीट की इकोनॉमी तो डिस्टर्ब हो गई फिर ना, कि सीमेंट आपके पास बढ़ गई एक, और दूसरा आपके पास क्या चीज बढ़ गई? सीमेंटिंग अमाउंट के रेज होने से कंक्रीट के अंदर हीट ऑफ हाइड्रेशन भी ज्यादा हो जाएगी. हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगी तो सीमेंट विल बिहेव एज ए क्विक सेटिंग की तरफ जाएगी ना, क्विक हार्डनिंग की तरफ जाएगी, रैपिड हार्डनिंग की तरफ जाएगी ना. ठीक है? और आपके पास जो ना जो वोकेबिलिटी को इफेक्ट करेगी और बाकी चीजों को भी इफेक्ट करेगी सीमेंट अमाउंट. तो इसलिए कहते हैं कि आपके जो जब आप मिक्स डिजाइन करते हैं तो जितनी वाटर सीमेंट रेशियो रिड्यूस करेंगे उस लेवल उसके साथ वाटर की अमाउंट भी साथ रिड्यूस होगी. और हम ऑफसेट किस लिए, उसके लिए क्या करेंगे फिर? देन हम उसमें जो है देन वी विल यूज वाटर रिड्यूसर सप्लीमेंट, उसमें यूज करेंगे वाटर रिड्यूसर और सप्लीमेंट्री मटेरियल to have reduced the amount of the water. तो वो वाटर रिड्यूस हम कर लेंगे तो देन वाटर टू सीमेंट रेशियो, देन सीमेंटिंग अमाउंट भी कम हो जाएगी. ठीक है? एट लोअर वाटर सीमेंट रेशियो. ठीक है? ये मैं कहना चाह रहा था. ठीक है? गॉट? एक्सक्यूज मी सर. जी सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है. आपको कहां से समझ नहीं आई? ये पूरी स्लाइड
नहीं सर, ये बस आखिर में सर एक लाइन। अच्छा, मैं कहना चाह रहा था कि अगर आपने वाटर टू सीमेंट रेशियो जो है तो वो तो अगर सेम है तो हम बाय डिक्रीजिंग द वाटर अमाउंट वी कैन रिड्यूस द सीमेंट अमाउंट। ठीक है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और टू रिड्यूस वाटर अमाउंट वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स। कौन सी टेक्निक्स है? वी कैन यूज वाटर रिड्यूसर एजेंट, केमिकल एडमिक्सर्स यूज कर सकते हैं टू रिड्यूस वाटर। ठीक है ना, we can use supplementary cementitious material to reduce water content. समझ आ रही ना? ये सर। अच्छा, तो आपने देखा है यहाँ पे there is the minimum requirement of the cementing materials. तो आपके पास जो ना कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ सीमेंट मटेरियल है जो नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट के साथ गिवन है। तो मैक्सिमम दिस amount, the cement amount should not be lower than this amount for corresponding maximum size of the aggregates. ठीक है ना? तो आपने देखा होगा क्या है 360 कितनी है? तो नॉर्मल रेंज मैं आपको बताता हूँ, नॉर्मल रेंज क्या होती है 380 to 460 kg per cubic meter of the concrete। ये जो सीमेंट है तो ये नॉर्मली जो ना मिक्स डिजाइन में यूज होती है। आप जब करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, एंड मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट डिपेंड करती है ना। तो मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट जस्ट in our last slides we discussed that how to decide the maximum size of the coarse aggregate and what that maximum size of the coarse aggregate has effect on the concrete. Thus the quality of concrete primarily depend upon on the water cement ratio of water content should be held to minimum to reduce cement requirement. Step to minimize water and cement requirement include stiffness. क्या आपको रिक्वायर्ड हो? स्टिफनेस, स्टिफेस्ट प्रैक्टिकल मिक्स। आप जो है ना जो वाटर आपके पास जो है जो स्लम्प है तो आपको अननेसेसरीली आप जो ना हाई स्लम्प आप ना करें ना। ठीक है ना, अननेसेसरीली। फॉर एग्जांपल इफ द स्लम्प इज रिक्वायर्ड स्लम्प इज 50 mm तो आप 150 mm के लिए डिजाइन ना करें, 50 mm के लिए कर लें। ठीक है ना? लार्जेस्ट प्रैक्टिकली आप जो मैक्सिमम साइज आप यूज करें। मैक्सिमम कोर्स एग्रीगेट साइज यूज करने से क्या होगा? आपके पास पेस्ट की अमाउंट कम हो जाएगी ना। जितनी पेस्ट की अमाउंट कम होगी तो उसके हिसाब से वाटर रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। ठीक है? और वाटर रिक्वायरमेंट जितनी कम होगी तो देन यू विल नीड द मिनिमम अमाउंट ऑफ cement for such kind of paste. And here the third option we have the optimum ratio of fine to coarse aggregate. ये जो एग्रीगेट्स हैं फाइन एग्रीगेट टू कोर्स एग्रीगेट तो ये ऑप्टिमम रेशियो आप रखें जो रेशियो आपको रिक्वायर्ड है। तो ऑप्टिमम रेशियो कैसे कैलकुलेट होती है बच्चों? सर सीव एनालिसिस से ऑप्टिमम रेशियो ना इधर से कैलकुलेट होगी, यहाँ से। आपके पास सैंड की क्या है फाइनेस्ट मॉडल्स गिवन है तो मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट भी गिवन है। फ्रॉम दैट वैल्यू यू कैन हैव the amount of the roded compacted density, the amount of roded compacted aggregate per unit volume of concrete. ठीक है ना? वहां से इजिली ले सकते हैं। Similarly, you can use supplementary cementitious materials भी आप यूज कर सकते हैं और नॉर्मली यूज होते हैं सप्लीमेंट्री cementitious materials। फॉर एग्जांपल
मैं कह सकता हूं कि एडिशन ऑफ फ्लाई ऐश जो है, फ्लाई ऐश क्या है, पोज़लैन मटेरियल है ना, दिस Yes, sir. इज यूज्ड। अब फ्लाई ऐश है, देखें ना, फ्लाई ऐश है, स्लैग है, स्लैग को हम कैसे लिखते हैं, GGBFS, ग्राउंड ग्रेन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, GGBFS, BFS. ठीक है ना, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है, वैसे स्लैग नहीं है, तो ये वैसे शॉर्ट टर्म गिवन है, ठीक है ना, ऐसा आप ना सोचो कि दिस स्लैग ग्राउंड ग्रेन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, इट इज रिटन शॉर्टली रिटन इन टर्म ऑफ स्लैग, सही है ना। अच्छा, तो सिमिलरली सिलिका फ्यूम है, तो इन केस ऑफ फ्लाई ऐश जो है will generally reduce water demand and decrease air content if no further adjustment in amount of AE admixture is made. AE mean air turning admixture, ठीक है। Similarly, अब सिलिका फ्यूम increases, सिलिका फ्यूम increase करता है, सिलिका फ्यूम increases water demand and decreases air content. Slag and metacholine, metacholine भी एक वो है पोज़लैन से, slag and metacholine have a minimal effect on normal dosage, उस पर जो ना इनके इस्तेमाल से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास जो है ना, there are 7 steps for calculating the mixed design. The at first step we decide about the strength of the concrete. अब सुनिएगा, ठीक है ना, अब अगली जो ना मैं लेक्चर में इसको लेने लगा हूँ। At first step we decide the minimum amount of the strength that is required for the mixed design. स्ट्रेंथ हम करते हैं, स्ट्रेंथ से हम जो ना उसको जितनी स्ट्रेंथ हम रिक्वायर्ड होती है उससे हम डिजाइन स्ट्रेंथ हम कैलकुलेट करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट डिजाइन स्ट्रेंथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डिजाइन स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करेंगे। बच्चों, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड एंड स्ट्रेंथ डिजाइन। क्या डिफरेंस है सर? मेरे ख्याल से डिज़ाइन उससे ज़्यादा होगा सर जो रिक्वायर्ड है, क्योंकि बीच में हम इसको ट्रांसपोर्टेशन और इनकी दौरान थोड़ी कम हो जाती है। एग्जैक्टली। अब देखो ना, इवन मेन हैंडलिंग से, या आप देखेंगे कि आप उसमें से कंक्रीटिंग प्रोसेस के दौरान या कुछ मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज जो है ना ऑन साइट चेंज हो जाती है ना बिट, तो उन सारी चीजों को ऑफसेट करते हुए डिजाइन स्ट्रेंथ बिट हाई रखते हैं। कितनी हाई रखते हैं तो ये कोड बताएगा ना हमें। तो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने कैलकुलेट आपसे करवाई है ना, तो आप जो है जो जो कंक्रीट स्पेसिमेंस होते हैं ना उस पे टेस्ट होते हैं, ऑलमोस्ट 20 टेस्ट या जितने भी 20 या 15 या जितने टेस्ट होते हैं, उस टेस्ट की बेस पे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट होती है। और वो जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन होती है उसको 1.3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो अमाउंट होती है इसमें जो आपके पास रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ होगी उसमें इसको सम करेंगे, ठीक है। देन यू विल हैव द डिजाइन स्ट्रेंथ। अगर आपके पास जो है ना, अगर डेटा अवेलेबल नहीं है तो आप फिर अज्यूम करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के इतना डेविएट कर सकती है स्ट्रेंथ, कितना, ऑलमोस्ट 3 मेगा पास्कल, 3.5 मेगा पास्कल। तो वो जो अमाउंट है वो आप उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे रिक्वायर्ड में। तो देन यू विल हैव द डिजाइन स्ट्रेंथ। तो वंस यू हैव द डिजाइन स्ट्रेंथ, तो आप उस डिजाइन स्ट्रेंथ के थ्रू आप वाटर टू सीमेंट रेशियो आप जो ना आप क्या क्या देख लेते हैं, आप जो है नोट कर लेते हैं थ्रू ग्राफ और थ्रू टेबल। एंड आपके पास जो है ना, आप सेकंड स्टेप पे आ जाएं। सेकंड स्टेप पे आपको आने के लिए आपको क्या है, आपको स्लम्प रिक्वायरमेंट होती है, कितना आपका स्लम्प रिक्वायर्ड है। और इफ यू नो द स्लम्प अमाउंट, तो आप और मैक्सिमम साइज ऑफ द एग्रीगेट, आप उससे आपको अमाउंट ऑफ द वाटर कंटेंट आप फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप हो गया। और थर्ड स्टेप में जो है ना, आपका एयर कंटेंट आप अज्यूम करते हैं कि कितने एयर कंटेंट के लिए आप कंक्रीट डिजाइन कर रहे हैं। इफ द एयर कंटेंट इज a bit higher, if it is air and ten concrete, तो उसके लिए फिर आपने AI कैलकुलेट करना है, ठीक है, कितना एयर एंटेनमेंट एजेंट। तो नहीं तो नॉर्मल हम 2% अज्यूम करते हैं इन कैलकुलेशन। तो देन द थर्ड स्टेप, द फोर्थ स्टेप, इन फोर्थ स्टेप वी मेजर द
we note down the amount of the rodded compacted coarse aggregate volume to cubic meter of concrete. किससे? हम दो चीजों से होगा, find modulus of the sand and the coarse maximum coarse aggregate size. ठीक है ना? और this is fourth step. and in fifth step क्या करेंगे आप कि आप जो है इन सब का वॉल्यूम आप फाइंड करेंगे, सैंड का भी, सीमेंट का भी, सॉरी इन एक स्टेप बीच में रह गया था, उससे जो ना वाटर अमाउंट आपके पास हो गई और वाटर टू सीमेंट रेशियो नोन है, तो फ्रॉम दैट यू कैन कैलकुलेट द सीमेंट अमाउंट. तो ये जो जितनी अमाउंट है, इनका सीमेंट अमाउंट है, वाटर अमाउंट है और आपके पास कोर्स एग्रीगेट की अमाउंट है, इनको आप कन्वर्ट करेंगे इनटू क्यूबिक मीटर और 1 क्यूबिक मीटर से इसको माइनस करेंगे, यू विल गेट द cubic meter of, you will get the amount in cubic meter of sand की अमाउंट आपके पास आ जाएगी. तो फिर उस सैंड अमाउंट को आप जो है फिर जो है ना, फिर वाटर एडजस्टमेंट है 7th स्टेप जो है, तो उसमें आप वाटर एडजस्टमेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल these sand and coarse aggregate all are calculated for SSD position. ठीक है ना? तो आपके पास तो ऑन साइट तो SSD नहीं होते, सैंड और कोर्स एग्रीगेट होते हैं SSD. बच्चों नहीं होंगे ना, आप बस ड्राई फॉर्म में होंगे, कुछ वेट फॉर्म में होंगे. ठीक है ना? तो देन you can make water adjustment. If it is in wet form, तो आप उसमें कैलकुलेट करेंगे कितना पानी ऑलरेडी मौजूद है इनमें, और वो पानी जो है आपने जो ना आपने माइनस करना है कि the amount of the water you are adding to the concrete. अगर if these aggregates are dry enough, then their SSD position, तो उसके लिए आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड है, तो क्योंकि एग्रीगेट ने पहले SSD होना है. इफ यू आर एडिंग द वाटर, तो इतना अमाउंट आप क्या करेंगे, यू विल एड टू द अमाउंट ऑफ द वाटर यू आर एडिंग इन द कंक्रीट. तो इन 7th स्टेप वी मेक द वाटर एडजस्टमेंट. ठीक है ना? ये आपका मिक्स डिजाइन हो गया. तो आपके पास जो है ना जितनी वैल्यूज भी होंगी, वाटर, सीमेंट, sand, coarse aggregate, all are given in term of cubic meter concrete. Cubic meter concrete के लिए. तो आपके पास जो है ना, if you, सर ये आप 21 नंबर स्लाइड पे आपने स्लाइड चेंज की. स्लाइड चेंज नहीं कर रहा मैं, वैसे जो ना अगली जो क्लास है ना उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बताया जा रहा हूँ, इसलिए जो ना वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, आपने मिस नहीं करनी है. ठीक है ना? सही है. तो जिसने अगली क्लास मिस की तो उसने कुछ नहीं पढ़ा. सर एक मिनट डिजाइन से न्यूमेरिकल आएंगे सर फाइनल. यार आपका जो ना मुझे नहीं पता, मैं डिजाइन से न्यूमेरिकल होंगे कि मैं थ्योरी दूंगा, खुद नहीं पता ना. ठीक है? तो चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास है तो उससे मिक्स डिजाइन को फिर कंक्लूड कर लेंगे. ठीक है? तो मैं अटेंडेंस ले लूं. ठीक है बच्चों? यस सर.